Hello everyone, welcome back once again. So this is the next video in exercise 9.5 of the chapter differential equation. In previous video we discussed question number 1, 2, 3, 4 and 5. So in this video we start from question number 6. I hope you got everything about what is linear differential equation. Okay, so this is the linear differential equation and we want to write its solution. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो एक मैं सिस्टमेटिक लिखता हूँ. ठीक है, मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन को एक सिस्टमेटिक लिखा जाए, फिर उसके बाद आपको बताया जाए. ठीक है, तो देखिए क्या है. सो हियर वी राइट गिवन दैट व्हाट x dy by dx plus 2y is equal to x square log x. Okay, now the above equation can be written as dy by dx plus 2 by x y is equal to x log x. Here we divide by x in each term. Here we divide, so 1, here 2 by x, here power will be cancelled. So this is the perfect form in linear differential equation. So you can write here which is in the form of LDE, linear differential equation, dy by dx plus py is equal to q, where p is equal to 2 by x, q is equal to x log x. So this is the what in linear differential equation. So we can write in this way. Now next, here we want to find integrating factor. So how you can write? Next line you can write, so integrating factor is equal to e raised to power integration of p dx. You can write e to the power integration of 2 by x dx. Again we write here e to the power 2 integration of 1 by x dx, e to the power 2 log x. Integration of 1 by x is log x, and we can write 2 in power, so we can write here e raised to power log x square. Here you can say e log x, so we write here x square. So what is the integrating factor? So integrating factor will be here x square. Now what is the solution? So here we write the solution of the given equation, is given by what? How you can write? Y into integrating factor is equal to integration of right hand side, that is q, into integrating factor dx plus c. This is the formula. And in how you can solution of linear differential equation, we also write in this way. Now y into integrating factor will be here x square, so integration of q is x log x, so x log x into what is integrating factor? X square, so x square dx plus c. Okay, now integration of what? Log x into x cube dx plus c. How you can here integrate? So when here we see that this is logarithmic function and this is polynomial. So in integration, first function here we let what? Here we assume log x. This is the rule. If any integration containing two types of function, that is logarithm and polynomial, so first function will be logarithm. So here first function
integration of second function, that is x cube. So integration of x cube will be x to the power 4 upon 4, x to the power 4 upon 4, okay, minus integration of derivative of first function, that is what, log x. So here we write 1 by x into integration of second function, x to the power 4 upon 4 dx plus c. ओके यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखिए सिंपली हमने रखा है, फिर उसको कैलकुलेशन किया है, ठीक है. अब क्या लिखेंगे आप? यहाँ से अगर आप देखिए तो ये क्या है, x to the power 4 upon 4 into log x minus here x4. So here we write what, integration of 1 by 4 integration of x cube dx plus c, because x divides x4. So here we have x cube. Now next line, here we write x to the power 4 upon 4 log x minus 1 by 4 integration. So here you can write x to the power 4 upon 4 plus c. And so we write here, next line is x to the power 4 upon 4 log x minus 1 upon 16 x to the power 4 plus c. Okay, and here we want to what, x to the power 4 upon 4 as common. So we have here log x minus what, log x minus what is, here we write 1 by 4 plus c. 1 by 4, why 1 by 4? Here x 4 upon 4, so 1 by 4, again x cube, so 1 upon 16. So we can write in this way. And now next line will be here, if we want to write here what, y into x square, and here we divide by x square each side. So we have what, y is equal to x square upon what, 4 in bracket 4 log x minus 1 upon 4 plus c x to the power minus 2. So this is the value of y, and in next line we write here x square upon 16 something. So this is the solution. And now next line we write here, if you see, I think दिख रहा होगा, yes we can write. So y is equal to x square upon 16 in bracket 4 log x minus 1 plus c x to the power minus 2. So this is the required solution of the given लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए क्या है, आपका प्रोसेस सेम अगर सही है तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं. अब देखिए ये सिस्टमेटिक हमने लिखा है, वाई हियर वी राइट इन सिस्टमेटिक. आपको ऐसा नहीं है कि आपको जिस तरीके से अगर रॉ की तरह लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है. एग्जामिनर को क्या चाहिए, सिस्टमेटिक. क्या है आप कर रहे हैं उसको हर एक चीज़ को लिखिए, ठीक है. तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है और इसी तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है. सो जल्दी से जल्दी आप इसको फोटोकॉपी कर लीजिए, ठीक है. एंड वी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन. क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6. देखिए सिंपल है, अगर आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस एक्सरसाइज को तो कुछ क्वेश्चन तो लगा ही लिए होंगे, ठीक है. मैं आप हर एक वीडियो में इसीलिए कहता हूँ कि आप क्वेश्चन को लगाइए ज़रूर, ठीक है. अगर कोई डाउट होता है तो आप उसके लिए कमेंट पिन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका मैं यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है. दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आंसर ईच क्वेश्चन इफ़ यू आस्क इन कमेंट बॉक्स. ओके, तो ठीक है, ये तो आपने लिख लिया होगा. मैं इधर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप इस साइड लिखिए, ठीक है. देखिए क्या है कि वीडियो ये आपके लिए अवेलेबल है. अगर कोई ये है कि अगर आप लिखना चाहते हैं इसको पॉज करके लिख लीजिए कंप्लीट, और
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए, फिर उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 हियर वी वांट टू राइट। सो क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट? Question number 7 is, what is x log x divided by dx? X log x divided by dx. This is question number 7 of exercise 9.5. Plus y is equal to 2 upon x log x. अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो जो दिया है पहले उसको LDE में लिखेंगे। LDE मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यू कैन राइट हियर द गिवन इक्वेशन, द अबव इक्वेशन, और यू कैन राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या करना है, देखिए x log x यानी dy by dx को फ्री करना है। तो x log x से हर एक टर्म में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हियर वी वांट टू डिवाइड x log x इन ईच टर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फर्स्ट हियर इफ वी डिवाइड, सो वी हैव हियर dy by dx प्लस 1 अपॉन x log x y इज इक्वल टू व्हाट 2 log x अपॉन x इंटू एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये क्या किया हमने, सेम इसी से हमने डिवाइड कर दिया है। अब क्या करना, अब इसको कटपिट करिए। तो यहाँ से अगर ध्यान से आप देखिए, सो ये लॉग एक्स कैंसिल होगा। सो इन नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको सिस्टमेटिक लिखना है। अब यहाँ पर आप अगर देखिए ये क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, क्यू क्या है 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हियर वी वांट टू राइट। सो IF integrating factor is equal to e raised to power integration of p dx. You can write in this way, integration of what, 1 upon x log x dx. अब ध्यान से अगर आप देखिए तो ये कैसे इंटीग्रेट होगा, यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन हियर वी यूज। सो हियर वी यूज, फर्स्ट वी लेट log x को अगर हम t मानेंगे, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, यानी 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ अगर हम लिखें तो, यानी ई रेस टू पावर लॉग टी किसको माना है, लॉग एक्स को ही माना है, यानी ये क्या है लॉग एक्स, ठीक है, ई रेस टू पावर लॉग एक्स। अब देखिए ई टू द पावर लॉग, ये तो कैंसिल होगा। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा व्हाट, log x इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब मिल गया है तो यहाँ से हमें सोल्यूशन सीधा लिखना है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखेंगे कैसे, देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, वही आपको अगर आपने सॉल्व किया होगा तो वही डिफ़िकल्टी रही होगी, ठीक है। बट हियर वी वांट टू सॉल्व। So solution given by y into integrating factor, that is log x, right hand side, that is what, 2 by x square. What is 2 by x square into integrating factor, that is log x dx plus c. You can write here 2 integration of log x x टू द पावर माइनस 2 dx, ठीक है। ये अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, प्लस सी। फिर देखिए जैसे पिछला क्वेश्चन था, इन क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, लॉगरिथमिक फंक्शन था, ठीक है, लॉग वाला फंक्शन था और पॉलिनोमियल था। इसमें भी वही है। तो करना क्या है, फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं, लॉग वाले को, ठीक है।
ठीक है। सो हियर वी कैन राइट 2 एंड इन ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 क्या होता है। x टू द पावर -2 का अगर आप करेंगे इंटीग्रेशन तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर +1 जैसे ही करेंगे तो ये -1 हो जाएगा अपान -1। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अगेन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है log x का 1/x इंटू ये इंटीग्रेशन ही एज इट इज़ हमें यहाँ लिखना है dx + c, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है, कुछ अलग नहीं किया है। जो नेक्स्ट हमने क्या किया है कि इसका इंटीग्रेशन, अच्छा ये इंटीग्रेशन की बात हो रही है। देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx का होता है n+1 अपान n+1, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, -2 है, तो यानी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -2 dx अगर करेंगे आप -2 + 1 अपान -2 + 1 क्या मिल जाएगा, ये x टू द पावर -1 अपान -1। यही तो हमने लिखा है, ठीक है। यही तो हमने यूज़ करके वहाँ पर लिखा है, ठीक है। हाँ आपको अगर थोड़ी भी कन्फ्यूजन है तो इसको ब्रैकेट में कर दीजिए आप, ठीक है, फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। नेक्स्ट क्या आएगा यहाँ से, नेक्स्ट आपका आएगा व्हाट, -2 log x अपान x। ये x टू द पावर -1 हमने इसको डिनोमिनेटर में कर दिया, ठीक है, और ये माइनस को हमने बाहर लिख दिया। अब यहाँ देखिए इस माइनस की वजह से ये भी एक माइनस है, तो यानी ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर -1 है, इसको भी ऊपर ले जाइए, यानी x टू द पावर -2 अगेन dx + c, ठीक है, ये हो गया। सॉरी, अब फिर उसका इंटीग्रेशन करना रहेगा, तो क्या आएगा, एक चीज़ देखिए यहाँ पर छूट गया है। जैसे ये 2 बाहर है, ठीक है, अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं यहाँ भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, यानी यहाँ भी क्या आएगा 2, ठीक है, ये 2 वहाँ भी रहेगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर लिखेंगे यानी -2 log x अपान x प्लस ये क्या आ जाएगा 2 और ये x टू द पावर -1 अपान -1 प्लस c। अब बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सिंप्लीफिकेशन हियर, -2 log x अपान x माइनस वाट -2/x प्लस c। देखिए कैसे क्या किया हमने, ये x टू द पावर -1 इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा और ये माइनस की वजह से यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया है क्या, अब यहाँ से अगर हम लिखेंगे अलग अलग तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, -2/x को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से log x + 1 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, log x और ये दोनों बाहर हो गए। अब क्या करिए, यहाँ पर क्या है y इंटू log x, यानी y इज़ इक्वल टू log x से डिवाइड करना है, सो यू कैन राइट -2 अपान x log x इन ब्रैकेट log x + 1 प्लस c log x टू द पावर वाट -1। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसका कौन सा है ये, ठीक है, आप यहीं भी आपके बुक में जो दिया है यहीं पर ये आंसर दे दिया है, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट लाइन इसको भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही आप का क्या हो जाएगा आंसर। देखिए प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर तो आना ही आना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए कितना सिंपल है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप हम जैसे लगाते जा रहे हैं आंसर आता जा रहा है, ठीक है। अगर आंसर में डिफ़र होता फिर लगता है कि हमारा प्रोसेस क्या है, कहीं पर फॉल्ट हुआ है, बट देयर इज़ नो एनी फॉल्ट इन द क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई वी गेट एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको नोट करिए। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज वन प्लस एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, ये हो गया होगा, उधर आप नोट करिए, इधर मैं लिखता हूँ पहले। Here we want to write first question number 8. So question number 8 is 1 plus x square dy. 1 plus x square dy plus 2xy dx. 2xy dx is equal to cot x dx. cot x dx ये दिया हुआ है। ठीक है, अब पहली बात तो क्या ये वेरिएबल सेपरेबल की तरह हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। होमोजीनियस की तरह होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो यानी लीनियर में ये चेंज होगा। देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर क्या होती है कि हमें dy बाई डी एक्स बनाना है। क्या बनाना है? dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स बनेगा कैसे? अब देखिए dx यहाँ पर इसको उस साइड ले जाकर के कॉमन ले लीजिए। सो वी कैन राइट द एबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, आपको ये लैंग्वेज लिखना रहेगा। मैं अगला लिखता हूँ कैसे लगाएंगे आप इसे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू वाट? कॉट एक्स डी एक्स माइनस 2xy dx। ठीक है, इसमें कोई डाउट? चलिए, अब क्या करिए, यहाँ पर dx को जैसे ही आप कॉमन लेंगे, यानी cot x माइनस 2xy dx। ठीक है, अब क्या करना है? dx को इधर करिए, इसको उधर। ठीक है, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cot x माइनस 2xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करिए। जैसे ही आप ब्रेक करेंगे, cot x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कुछ कुछ दिख रहा है कि कैसे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। कैसे? देखिए, dy बाई डी एक्स, अब यहाँ से लिख सकते हैं आप dy बाई डी एक्स, इसको इस साइड लाएंगे, प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू कॉट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया किसके फॉर्म में? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। यही तो करना था। ये क्वेश्चन अगर ये आपको ये डायरेक्ट लिख के देता तो आप तो डायरेक्ट लगा देते, बट इसी टाइप से देगा कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे करें कैसे करें। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये लगाना है। अब यहाँ पर ये P हो गया और ये Q हो गया। ठीक है, यानी आप यहाँ लिखेंगे P इज इक्वल टू क्या है? 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Q क्या है? कॉट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा के लिए नहीं है। अगर ये कॉट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेशन में डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ से ये संकेत, मतलब यहाँ से कुछ क्लू मिलता है कि अगर ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो हो सकता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आ जाए। ठीक है, बट ऐसे नहीं कह सकते ना, हम तो यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए, जैसे ही आप इसको t मानेंगे तो ये 2x dx आ जाएगा। इट मीन्स इंटीग्रेशन हो गया। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1 बाई अगर t है तो यानी log t, तो यानी क्या आ जाएगा ये ई रेज़ टू पावर log t। किसको मानेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर को।
अब देखिए e टू द पावर log है तो ये हटेगा, यानी 1 + x² क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था मे बी 1 + x² ही आ जाए, ये इसीलिए ऐसे ही दिया रहेगा। ठीक है, चलिए इसको आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ से क्या करना है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 + x², तो रखिए वहाँ पर है तो, यानी y × 1 + x² इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, दैट इज cot x अपॉन 1 + x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 + x² dx + c, व्हाट इज dx + c। सिंपल है, समझ में आ रहा है कुछ। अब देखिए ये क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cot x, cot x क्या होता है, अब cot x का इंटीग्रेशन होता है व्हाट, log sin x। ठीक है, क्या होता है, log sin x + c, यही आपका सॉल्यूशन हो गया, which is required solution। समझ में आया कुछ। ये कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ठीक है, ठीक है, आपने ये लिख दिया। अगर ये 1 + x² था, आप उधर ले जाकर इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो वहाँ से भी ये आ जाएगा। ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप। Question number 9 is, I think in this video we solve question number 6, 7 and 8। ठीक है, और आपको ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करेंगे। So here we close this video at question number 8 solution, and now in next video we solve question number 9 and another question. If you have any query, if you have any question which you want to solve but you cannot solve, ठीक है, उसकी सेटिंग करने में कोई भी अगर परेशानी है, if you face any difficulty to solve solution of the question, so you can comment in comment box with solution with question. I will definitely discuss in next video. Okay, so I hope you got it everything about this video, and here we close this video, and now we will meet in the next class with question number 9. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.